हाय सुकृति एंड प्राकृति, कैसे हैं आप लोग? We are great. How are you? मैं भी बहुत अमेजिंग। एंड वैलेंटाइंस वीक चल रहा है और कई सारे लड़कियां जो हैं आप लोगों के गाने कुछ लड़कों को भेज रही हैं। Love that. We love knowing that little piece of information. That is exactly the motive behind making Sona Lagda. So thank you. ओके, सो प्राकृति एंड सुकृति, ये एक बात बताइए मुझे, कितनी बार ऐसा होता है आप लोगों के साथ में कि लोग बाग पूछते हैं कि हु इज सुकृति एंड हु इज प्राकृति? मतलब आई नो बहुत बार होता होगा। Every day, multiple times a day. So I mean, like it's just something that we are so used to now, and actually so bored of now. So I mean, it's just how it is. Okay, life. So is going on. मेरा एक सवाल है आप लोगों से। आई एम श्योर डेट्स पर तो हम जाते ही जाते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई प्राकृति बन करके सुकृति गई है किसी डेट पर एंड सुकृति बन के प्राकृति गई है किसी डेट पर? ऐसा कभी किया आप लोगों ने? I don't think that's allowed, by the way. I don't think we can do this. No. I think also when it comes to just people and men, our tastes are very different. So I will never go out for a date with somebody who Puku likes and vice versa. Yeah. प्रैंक, हम किसी के ऊपर प्रैंक करना चाहे तो हम जरूर ऐसा कर सकते हैं, नॉट इंटेंशनली बट एज अ प्रैंक। Actually, it's a good idea. We've just never done it so far. Maybe we'll think about it when we are feeling very adventurous. Yeah, not feeling adventurous right now. Okay. तो सुकृति एंड प्राकृति, आप लोग के जो गाने हैं, पहले माफिया एक काफी बड़ा हिट रहा है, एंड देन अभी जो गाना हर क्लब में बज रहा है और लोग बाग गुनगुनाते हैं, हम तुम, एंड काफी पॉपुलर हो रहा है, लोगों की ये कॉलर ट्यून बनी हुई है, सुधर जा। सुधर जा, माय पर्सनल फेवरेट। Love it. Thank you. तो ये जो सॉन्ग्स हैं एंड ये जो आप अलग अलग जो तड़का लगाते हो आप आपके गानों में, कि हाँ आप एक वार्निंग दे रहे हो, आपने कहा ये हमें पता है, ऐसा तू करता है, ऐसा तू कर चुका है, तो ये थॉट कैसे आया दिमाग में? आपने कब सोचा कि ऐसा कुछ करना चाहिए हमें? बिकॉज ऐसे मार्केट में सॉन्ग्स नहीं थे उस वक्त जब आप लेकर के आए हो। True. Actually, I think it really depends. When we were growing up and when we were in college and school, we listened to like US UK top 40 English या Coke Studio या कुछ भी हो, तो हमारा ऐसा नहीं था कि हम एक ही genre सुनते हैं या फिर सिर्फ बॉलीवुड गाने सुनते हैं. So I think when it comes to our musicality, it's very like global, and but it's also something that like I want to behave my age. Like obviously in Bollywood in playback you are always singing for actresses in a very Bollywood way. But there's always a brief. I think more importantly, jitna bhi aap karne ki koshish karte ho for films, they'll always tell you that but you have to remember the brief, you have to remember who you're singing for and what is she playing in the movie as a character. And actually wo hamari training rahi hai, but the goal was to always kind of talk about things that we feel, and like as girls, matlab breakup के बाद अगर गाना नहीं बनाया तो फिर क्या किया? You know what I'm saying? Like we have to put like those emotions into a song, or when we are feeling different things. Like Sona Lagda was a song जो पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने खुद compose नहीं किया है गाना for viral, but we love the vibe of the song. Since we heard it, Bharat and Saurabh, who actually composed the song, they called us on board for the song, and I think पहली बार जब हमने वो गाना सुना था, we were like, ऐसा गाना अभी तक हमने नहीं किया, तो इसलिए हम करेंगे. And 2021 you'll be hearing all different those kinds of genres we want to tap on, the kind of flavors we've not done, but also again do things like Hum Tum and Mafia and Kendina Kendina, which is completely and totally us. करेक्ट. ओके, सो अभी सोना लगदा अभी गाना मैं देख रही थी, सो इस गाने में काफी स्वैग है, काफी स्टाइल है और लिरिक्स तो है ही ऑसम, प्लस देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बड़ा मजा आता है इसको देखने में. मैं स्टाइलिंग की बात करूंगी. यू गाइज आर फ्रॉम दिल्ली, सो कहते हैं कि दिल्ली की जो कुड़ियां होती है ना, वो पैदा ही स्टाइलिश होती है. तो जब आप बड़े हो रहे होते हो, दिल्ली की कुड़ियां जब बड़ी हो रही होती है, तो ये स्टाइलिंग टिप्स उन्हें कहाँ से मिलती है? मतलब इनबॉर्न होता है ये टैलेंट या फिर आंटी के हो जाता है ऐसा?
नहीं पता है हम दोनों में ना लाइक वी ऑलवेज लाइक जो शो बिज होता है ना, बिजनेस तो है ही, करने हैं शोज, बट उसका जो शो पार्ट है ना, वी ऑलवेज टेकन दैट वेरी सीरियसली एंड आई फील लाइक वी बोथ ऑलवेज व्हेन वी आर वर्किंग स्पेशली ऑन अ नॉन फिल्म इंडिपेंडेंट म्यूजिक, हम तो वीडियो ब्रीफ के साथ ही जाते हैं पिच के लिए, यू नो लाइक वी नो एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू लुक लाइक, वी गो विद अ मूड बोर्ड रेडी, वी गो विद रेफरेंसेस, मतलब फैशन का है बहुत ज्यादा शौक हम दोनों को, and you know like बचपन से है, so it's not something that's suddenly like a new thing, we've always liked styling ourselves and stuff, अगर हम musicians या singers नहीं होते तो शायद स्टाइलिस्ट या डिजाइनर्स ही होते I don't know कुछ तो कर ही रहे होते फैशन में for sure. I would have loved to study fashion also, never done that, but yeah we like making mood boards of the looks. I'm sure गाने तो आपको पसंद आते हैं लोगों को, but you're also a style inspiration for so many people, so many girls, because आप देख करके लगता है हाँ यार this is something I want to try. So sweet of you. Thank you. Just try. सुकृति एंड प्रकृति, अब हम बात कर रहे हैं सोना लगदा की, तो मैं चाहूंगी एक बार आपकी आवाज में यहाँ लाइव हो जाए, अब सामने बैठे हो ऐसा sure. तेनू तकदी फिरा दिन रात वे, सोना लगदा तू सोना लगदा, मैनू अपना बना ले तू यार वे, सोना लगदा तू सोना लगदा. Thank you. अगर मैं बोलूं ये गाना अभी आप बॉलीवुड में से किसे डेडिकेट करना चाहोगे, तो कौन सा एक्टर होगा वो? मुझे प्रकृति का पता है. I think Prakriti will dedicate this to Aditya Roy Kapoor, who is Prakriti's very big crush. What to do always since Aashiqui 2, so I'll dedicate it to him. And I know who you will also dedicate it to. Better be recent. Okay, I think Ranbir Kapoor. Yeah, eternal crush. Yeah. Okay. एक और क्वेश्चन है मेरा कि अगर आप लोगों के पास में कोई बॉलीवुड ऑफर आता है एक्टिंग का, तो क्या आप उसके बारे में विचार करोगे? I mean, फ्यूचर में मूवीज एंड ऑल. See, we have honestly like we have been approached, but at that time ऐसे वो अंदर से नहीं आया था कि करना है because we were like ठीक है एक्टिंग करेंगे कुछ हद तक, but music videos में करेंगे, because even till now, to be fair, we haven't acted in a music video. Yeah, it's always been performance and dance based and everything. But वैसा वाला वीडियो करेंगे for sure. तो पहले वहाँ पे acid test करेंगे and we'll see how that goes and then maybe think about it. Okay, that's cool. Okay, so Sukriti and Prakriti, FM तड़का की एक एक्टिविटी अभी चल रही है, and हम लोग लेकर के आए हैं बिगेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव अगेंस्ट फ्रेंड जोन, and I'm sure आप लोगों ने कई सारे लड़कों को फ्रेंड जोन किया होगा. कुछ हमारी रेपुटेशन ऐसी क्यों है, बट ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली. लोग और लड़के भी हमें फ्रेंड जोन करते हैं, तो मतलब ये बहुत ही नॉर्मल है. वाओ ये आपने जो बात बोली है ना अभी, ये वायरल हो सकती है. सुकृति एंड प्रकृति कक्कड़ हुई फ्रेंड जोन. मतलब होता है यार, कभी होता है, मतलब कभी नहीं होता है, कभी होता है, so it happens in life. आप क्या कहना चाहोगे, आप दोनों क्या कहना चाहोगे इस फ्रेंड जोन टाउन को लेकर के? मतलब बहुत ज्यादा इसका हवा बना हुआ है, हर कोई बात करता है, हर कोई होता है, करता है. But I think it's to be honest, I think friend zone जिसने भी ये terminology बनाई है बहुत ही smart इंसान है, क्योंकि I think friend zoning is always better than leading someone on. You know what I'm saying? Like I think बहुत ये because बहुत बार ऐसा होता है that it's that gray area and you're not you don't want to date that person. Friend zone is better. Yeah, better. I think being clear is good. So I think and friends are actually sometimes better than even boyfriends. Nah, being a friend is such a good thing. Like I love friends, so it should just be like that. Okay, so Valentine's Day ये हार्ट ब्रेक की भी बात करेंगे, और मेरा पर्सनल फेवरेट सॉन्ग जो भी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, सुधर जा, मैं चाहूंगी कि वो भी एक हो जाए. आप दोनों यहाँ पर सामने वो गाना बनता है. बहुत टाइम से गाया नहीं है सुधर जा. Okay, just for you, we're gonna do this. Thank you. Okay, fine. 1, 2.
Okay. मेरे लिए तो पहली दफा था, देखा तुझे और कुछ तो हुआ था, अब लगे जैसे सपना बुरा था, सपना बुरा था। लव तुमसे करके भी देखा, तुम पे हमर के भी देखा, 100 बार मिल के भी देखा, बातें होने थी हो गई रातें, है आज से रह जाते जाते, सुन ले मेरी तू फिक्र मेरी छड़ दे, हो सुधर जा सुधर जा घर जा, ओ सुधर जा Wow. सुधर जा घर जा, ओ सुधर जा घर जा. Hey, thank you so Thank much. you. Thank you so much, Sukriti. Almost At last forgot मैं lyrics. चाहूंगी I've not sung this in so long. हाँ, पर आपने बहुत अच्छा गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज हम लोग कभी लाइव कॉन्सर्ट्स जो है वो नहीं देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ I ऑब्वियस। know. तो अभी मैं आपके सामने लाइव हूँ और मुझे ये एक्सक्लूसिव सुनने को मिला है। So yes, Yay. Thank you for thank requesting for this song. I think ये गाना बहुत special है क्योंकि this marks, you know, it ticks off the journey from film to non-film for us. First song ever, so always going to be very special. आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत एक ग्राफ देखा होगा नॉन फिल्म म्यूजिक एंड फिल्म म्यूजिक को लेकर के, बिकॉज पहले के टाइम में फिल्म म्यूजिक वाज एवरीथिंग, लेकिन अभी ओरिजिनल गाने, इंडिपेंडेंट गाने लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। इनफैक्ट इतने पसंद आ रहे हैं कि उन्हें बाद में फिल्म में ऑप्ट किया जा रहा है। Definitely. So, ये चेंजेस, ये सिनेरियो, क्या कहोगे आप इसके बारे में? I just feel like, you know, हमारे जैसे, like, I like to believe like there are so many girls like us, right? And if they are younger than us also or older than us and want to get into singing, their career, and I feel not just girls, even boys, their careers can't depend and be reduced to how many opportunities they'll get in a movie. Because 5 गाने होते हैं movies में, and at least for girls too, we get like 3-4 lines sometimes. Maybe 1 out of 5 songs. Yeah. Especially for girls. So I just think it's not fair. I feel like if you want to be a musician, you should be able to put your music on YouTube also, and if it's nice, people will hear it. You know, like you could record covers and put it on Instagram, but like it can't, like, singing career can't be like just movies. You know, I don't believe in that, and I feel like when we started, that was the only option. Because that's how we thought that we'll be a part of the industry. But very luckily, touchwood, now times have changed and people are really open, and it's a good time to, you know, be a singer or a musician or songwriter. आई एम श्योर। प्लस आप इतने पेपी कमाल सॉन्ग्स बनाते हो तो जनता, हम लोग कैसे नहीं सुनेंगे? कुछ तो अलग हमें हमेशा सुनने को मिलता। We try. ऐसे ट्राई करते रहिए, ऐसे अपने गाने बनाते रहिए और बातें करती रहिए हमसे। Thank you so much. कैसा जा रहा है आपका वैलेंटाइंस वीक? बहुत अच्छा जा रहा है एंड नया सॉन्ग रिलीज हुआ है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। आई मीन इतना अच्छा रिस्पांस मिला उस सॉन्ग पे जिससे आपके साथ इंटरव्यू भी हुआ था उस चीज पे ऊपर, और अभी बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन मैंने उस चीज का अनप्लग्ड वर्जन टाइप का बनाया हुआ है एंड थोड़ा सा ट्विस्ट है उसमें एंड एवरीबॉडी इज लविंग इट, सो लेट्स सी कैसा जा रहा है। उम्मीद है वो भी अच्छा जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये जब बार मैंने आपका इंटरव्यू किया था, वे माही माही जग छोड़े आवे, तो उस टाइम गाना ना बिल्कुल नया आया था और मतलब आपको क्या लग रहा था कि कैसा रिस्पांस आने वाला है लोगों का इस पे? लाइक आई तो एब्सोल्युटली लव्ड इट व्हेन आई हर्ड इट फर्स्ट, बट देन व्हाट वर योर होप्स? बेसिकली वो सॉन्ग मतलब एक मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एक एक्सपेरिमेंट टाइप का था, बिकॉज जो मेरा जॉनर, जो माही का जो अभी जो मैंने वर्जन रिलीज किया है, बेसिकली माही वैसा ही था पहले। हाँ, okay. तो यू नो नाउ यू हैव टू सी कि ऑडियंस को भी क्या म्यूजिक पसंद आना चाहिए, यू नो वो सब चीजें भी, थोड़ा कमर्शियल पार्ट भी होना चाहिए उसमें। सो वो सब चीजें के लिए मैंने फिर वो माही पहला उस तरह से रिलीज हुआ एंड देन हमने सोचा कि व्हाई डोंट वी डू द वे इट वाज। ओके। सो आई नो यू राही, मैंने आपका इंटरव्यू किया है और आपको मैंने जितना वीडियोस में देखा, यू आर अ वेरी शाय पर्सन, यू नो, और इस वीडियो निकल के भी आ रहा है कि यू वेरी शाय। उस टाइम जब वो वीडियो शूट हो रहा है तो आप मतलब थोड़े से शर्मा से रहे हैं, तो मैं एक्चुअली आपसे जानना चाहती हूँ कि अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जब आपने आकाशा सिंह के साथ ये गाना आया आपका, शी हैज संग इट ब्यूटीफुली, सो वाज इट योर फर्स्ट
कि हाँ आकाशा सिंह से ही गवाना है मुझे? बेसिकली यू नो मैंने अपनी टीम बिग बैंग टीम के साथ मेरी बातचीत हुई थी एंड मुझे मतलब मैं यूजुअली गाने सुनता नहीं हूँ, मतलब मुझे पता नहीं होता है कि क्या चल रहा है मार्केट में इस तरह से। ओके सो मेरी टीम ने एक गाना भेजा था येलो डेयरीज का, रब रखा। तो मैं बैठा हुआ था और मैंने वो सॉन्ग सुना और उसमें आकाशा ने गाया था। तो मैंने कहा यार इसका वॉइस बिल्कुल जाएगा माही पे। सो उस दैट्स हाउ इट वो आइडिया आया एंड हाँ देन फिर वी जस्ट थॉट कि लेट्स डू इट। मुझे पूरा यकीन ऐसा होता है ना कि मुझे पता था कि ये हो जाएगा, मतलब इट उस उनका जॉनर वैसा ही और उनने इतने अच्छे से गाया इस चीज को और उनको भी पसंद आया। सो मतलब बखूबी अच्छे से गाया उन्होंने और भी अच्छा लग रहा है सॉन्ग। या So this entire video where the Chinky Minkies are also involved, आपने collaborate किया है Yeah. Chinky Minky के साथ में। So the biggest Yeah. surprise was कि they were opening the video and then you were coming and then Akasa was coming. तो ये जो पूरा जो क्या बोलूंगी एक छोटा सा play type जो हुआ है, ये जो story Twist, create, हाँ। absolutely is the right word. तो ये आपही ने डिजाइन किया था या फिर somebody else नहीं डिजाइन नहीं किया? नहीं ये मेरा दिमाग इसमें कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, मुझे तो पता भी नहीं है सब चीजें। Okay. But you also know it. I mean, market. You have to know the market. So if you want to reach so many audience और उनका the way उनकी इतना mass audience है उनके पास, so हमने सोचा कि एक नया टाइप का वीडियो भी हो सकता है। Like मेरी जो लेबल कंपनी है बिग बैंग, they thought like that कि let's do like that. Let's create. This is the idea. So मैंने कहा चलो ठीक है. Let's do like that. ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था। ओके ये हो गया, मतलब सोची हुई चीजें जनरली हो नहीं पाती है, लेकिन जो चीजें अनएक्सपेक्टेडली होती है वो बहुत अमेजिंग हो जाती है एंड दिस टर्न्ड आउट टू बी रियली रियली अमेजिंग। ओके सो यू आर ए यंग बिल्कुल आर्टिस्ट एंड वैलेंटाइंस वीक चल रहा है और हम लोगों ने एफएम तड़का पे एक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई हुई है, फ्रेंड जोन वैक्सीनेशन ड्राइव, जिसमें मैं उन लोगों को बाहर निकाल रही हूँ। मतलब मैं फ्रेंड जोन में जो लोग हैं उन लोगों को मैं फ्रेंड जोन से बाहर निकाल रही हूँ, मतलब कि आई एम अलाउइंग देम, आई एम मेकिंग देम टू डेट देयर क्रशेस। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कभी फ्रेंड जोन हो गए हो? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक मेरे थॉट प्रोसेस बहुत ही डिफरेंट है। लाइक आई थिंक लास्ट टाइम भी आई थिंक इस बारे में बात हो चुकी थी आई गेस, बट आई डोंट नो हुई थी आपसे या किसी और से हुई थी, मुझे याद किसी नहीं है। और से हुई होगी, मैंने बिल्कुल म्यूजिक बात की थी। नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम। नहीं सो बट मुझे याद है आप भी गाना गाते हैं। आई नो दैट यू आल्सो सिंग, या सो आई रिमेम्बर दिस। सो बेसिकली उस टाइम लाइक जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही डिफरेंट है, बिकॉज आई डोंट फॉर मी like if you love someone, the I feel the very weird to call someone my girlfriend, to be honest. Like I think the beautiful word for a girl is like a queen or wife. मुझे ऐसा लगता है जब वो wife होती है she looks like a queen, just the girlfriend thing is like आम हो गया, मतलब crowd हो गया वो। राइट। So if you love, कम लोगों की है। कम लोगों की है, लेकिन मैं वही चीज उसी चीज पे मेरा काम है। इवन इफ आई एम यंग आई शुड आल्सो गाइड्स पीपल, जो अगर मुझे अल्लाह ताला ने ये चीज डाली है मेरे दिल में, मैं उस चीज को एक्सप्रेस करूं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि मैं भी उसी बीट का हूँ। ऐसा नहीं मैं कोई अलग हूँ आर्टिस्ट, आई फील वेरी डिफरेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वही हूँ जो वो है। इट इज जस्ट कि some things we have to bring in our society, बिकॉज हमारा जो कल्चर है वो सबसे खूबसूरत है दुनिया का, जिससे हम जाने जाते हैं, जगह से नहीं। और उस कल्चर को कोशिश किया जा रहा है कि कि वो चीज चली जाए, लेकिन जो प्योरिटी है हमारी वो हमेशा रहेगी, और उस चीज को हमें वापस लाना है। दैट्स हाउ आई फील कि ये वैलेंटाइंस क्या, मतलब हर दिन वैलेंटाइन होना चाहिए, नॉट वन डे। हर दिन मदर डे होना चाहिए, नॉट वन डे। हर दिन फादर्स डे होना चाहिए, नॉट वन डे। सो इट्स लाइक फॉर मी इट्स लाइक दैट। You know what, this sounds really amazing to me because you know what, अभी इतने सारे यंगस्टर्स से मैं मिलती हूँ तो बहुत कम यंगस्टर्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं यार, वैलेंटाइंस डे इज नॉट जस्ट वन डे थिंग, इट शुड बी एवरी डे। कैजुअल डेटिंग को समझ में नहीं आती है। मैं जनरली मैं तुमसे ये बात करती हूँ, आजकल यूथ इज टू मच इनटू कैजुअल डेटिंग, डेटिंग एप्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट यू आर कंप्लीटली डिफरेंट। आप इन चीजों से बिल्कुल परे है और वो आई आपके डोंट बिलीव म्यूजिक इन दिस।
या इफ आई विल बिलीव ऑन दिस, म्यूजिक में कभी मेरे म्यूजिक में कोई प्योरिटी नहीं रहेगी। वाओ, दिस इज वंडरफुल। अगर आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हो, आप सोचिए ना, अगर आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हो, वो आपके सामने आता है, अगर आप उसको, पहला ख्याल आपको ये आएगा कि पहले मैं गर्लफ्रेंड उसको बनाऊं, फिर देखता हूँ कि चलेगा या नहीं, फिर उसके बाद देखते हैं ना शादी कर लेंगे या नहीं। मतलब इट्स लाइक आप सोचिए ना, ये एक बिजनेस डील हो गई। मतलब हम, हाँ, मतलब अगर उसको देखकर उसको ये नहीं लग रहा है कि यार मुझे इसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है, देन इट्स नॉट अ लव। भाई उसका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर कोई हॉबी है, ये एक्चुअली एक हॉबी बन चुकी है, तो कुछ और हॉबी कर लो, गिटार बजाओ, ये सब करो। लेकिन एक इंसान के साथ खेलना, उसके इमोशंस के साथ खेलना, इट्स लाइक माय मदर हैज ऑलवेज टोल्ड मी दैट सब कुछ करना पर किसी का दिल मत तोड़ना। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी टू ये चीजें होना। राही, लेकिन आप इसी जनरेशन के हैं, इन्हीं लोगों के बीच में पढ़े हैं, इन्हीं लोगों के बीच में आप काम कर रहे हैं, सो आपके आसपास आपके जैसे लोग कम होंगे, आई एम श्योर। बट ये जो आपका थॉट है, ये आपने किस तरीके से यू हैव you're like you're quite upfront about it and you're not ashamed of it and you're like कि नहीं, मैं ऐसा हूँ और मैं this is the best thing about me that I love it, और मैं किसी से प्यार करूंगा तो मैं उसको उसी नजर से देखूंगा, she is not gonna be my girlfriend. So, how have you made yourself that strong enough कि इस society में रहकर भी like you're very different from everybody else? To be honest, I was not like this before. So, but things change. हर दिन, मतलब जिंदगी, आपको भी पता है कि हर दिन, हर वक्त जिंदगी सिखाती है कुछ ना कुछ. So, the moment I went into my spirituality, जो इंसान के अंदर होनी चाहिए, तुम्हारे माँ बाप क्या है? Because see, I used to feel like मेरे माँ बाप पहले, हाँ यार मैं बहुत अच्छा रहूं उनके साथ, लेकिन जब मैं हम रिलीजन को भी बहुत अलग, मतलब मीडिया की वजह से उस चीज का एकदम अलग है। रिलीजन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, आपको, मतलब जो चीजें सीखनी चाहिए वो आपको कोई साइंस नहीं सिखा सकता। साइंस आपको बहुत दे विल गिव यू नॉलेज, बट दे कैन नेवर मेक यू ह्यूमन, कि एक इंसान के अंदर क्या हो सके। वो आपको बोलेंगे अच्छा इसमें दिल में इतनी बीट्स हो रही है, वो आपको ये नहीं बोल सकते कि उसमें क्या एहसास हो रहा है। आप समझ रहे हो? सो वो एक प्रैक्टिकलिटी की होती है, लेकिन इंसान वैसा नहीं है इन जनरल। सो वही एक स्पिरिचुअल वो चीज, because I'm quite spiritual. I'm really, because I'm into it, and every day I give some time to it. Before sleeping, I absolutely give myself to it, and so I can relate to it. अच्छा, by the way, लेकिन ये Valentine's week है और प्यार का मौसम है। अगर आपकी कोई someone special हो अगर आपकी लाइफ में, तो उनको आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे? बिल्कुल, ये माही is the best song to So please sing few lines for us. Yeah. Once. Yes. आजा खो जाऊं तेरी वादियों में, सो जाऊं। आजा खो जाऊं तेरी वादियों में, सो जाऊं। दिल पे रखिया तेरी दुआवा, तू है मेरा साथी। एतबार कर तू माहिया, ना कर तू देरी। वे माही जग छोड़े आवे, अभी गाइए। वे माही दिल लग गया वे, माही तू है मैं हूँ। वे माही चल आवे, वे माही जग छोड़े आवे। वे माही दिल लग आवे। वे माही तू है मैं हूँ। वे माही चल आवे।
अमेजिंग अमेजिंग। और आपने बोला ना गाने थैंक के यू। लिए मुझसे ज्यादा कोई उत्सुक नहीं है गाने के लिए, लेकिन मैं अभी गाती तो लैग हो जाता, ना आप गा पाते ओह ना मैं गा पाती। अरे अरे लेकिन लेकिन मैं अभी ये तो डिजिटली हम लोग मिल रहे हैं, कभी मैं आपसे सामने से मिली ना तो डेफिनेटली आई एम गोना सिंग दिस सॉन्ग विद यू यार। मतलब क्या रेडियो पे या गाना आता है ना, जैसे ही मैं हुक प्ले करती हूँ ना इसका, सडनली हाँ मैं कोई भी बात कर रही हूँ लेकिन मेरा जोन प्रॉपरली डिफरेंट हो जाता है। आई गो टू एब्सोल्युटली थैंक यू समथिंग थैंक एल्स। यू थैंक यू ब्यूटीफुल सो सॉन्ग। मच थैंक यू सो मच। ओके राही, छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे हम आपके साथ में, और उसमें बिल्कुल ना बिल्कुल। क्विक एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट। या ऑनेस्ट तो ऑब्वियसली एवरीबॉडी हैज टू बी Okay. ऑनेस्ट या। Yeah. Okay. So, who do you think is the most promising singer of today's time? आज के टाइम का सबसे promising singer आपको कौन लगता है? इन इंडिया Yeah. अरिजीत सिंह। Okay, and why? आई थिंक वो अपने आप को भूला नहीं है इतना फेम होके हुए Hmm. जो वो था। Wow. Okay, तो उनका ही कोई गाना आपको जो बहुत ज्यादा पसंद हो? या करते हैं हम आज कबूल क्या कीजिए करते हैं हम आज कबूल क्या कीजिए हो गई थी जो हमसे भूल क्या कीजिए दिल कह रहा उसे मयसर कर दिया वो जो अधूरी सी बात बाकी है वो जो अधूरी सी याद बाकी है वो जो अधूरी सी याद बाकी है। Beautiful, 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 Rahi. Amazing. Thank you so Okay, much. Rahi's version of फिर ले आया दिल. Moving on to the next question. The Yeah. rapid fire still going on. Okay, so किसके साथ आप collaborate in the recent future? आवाज किसके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ? Collaborate. Hmm. Yeah, like I'm going to do with Nuran Sisters. Oh wow, Yeah. wow. So that that makes me quite curious. Sufi? Yeah. Is it a Sufi number? Yes. ओके, सो कुछ बताइए उस गाने के बारे में। डेफिनेटली स्पिरिचुअल भी होगा, एनर्जेटिक भी होगा, और Everything. क्या है? बहुत एनर्जेटिक है, बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत मतलब उसमें पोएट्री मैंने बहुत अलग सी लिखी है जो मैं ऑलवेज आई फील एंड आई थिंक मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सॉन्ग के लिए भी। लिरिक्स आपने ही और लिखे हैं? या एवरीथिंग ओह मैं वाओ, लिरिक्स सारे गाने के तो खुद ही लिखता हूँ। सो ओके, मेरे सॉन्ग्स एक्चुअली ये भी मैं बताना चाहता हूँ मेरे सॉन्ग्स कोई भी ऐसा एक सॉन्ग नहीं है जो मैंने सिर्फ लिखा है, मैंने उसको फील किया है फिर लिखा है। तो मतलब आपके जितने भी गाने हैं वो कहीं ना कहीं आपकी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सारे गाने मेरी ओके, जर्नी है पूरी। या वाओ। तो मतलब ये आपकी जो जर्नी है, ये आई थिंक अपन लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी तो आपने कहा था कि यू वर इन कश्मीर एंड आपने काफी यंग एज में यू स्टार्टेड कंपोजिंग सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग, सो एवरीथिंग या दैट, so the Sufi song that's coming up is also related to your life? Yes, absolutely, yeah, Wow, that's absolutely, gonna be yeah, very interesting. Okay, yeah. so एक फीमेल सिंगर जो बहुत प्रॉमिसिंग है इस टाइम पे इस बॉलीवुड टाइम पे इंडस्ट्री में। बॉलीवुड इंडस्ट्री में यार बहुत सारे हैं लेकिन टू बी टू बी ऑनेस्ट मुझे द काइंड ऑफ वॉइस आई लाइक देयर इज वन गर्ल अन्वेषा इज देयर मे Absolutely, बी yeah. आई लव हर वॉइस आई लव शिल्पा राव उनका वॉइस मुझे पसंद है इफ इट वाज पॉसिबल आबिदा परवीन जी रेखा भारद्वाज दैट्स नूरान सिस्टर्स आकाशा मतलब ये सारे हैं नीति मोहन जोनीता हाँ, गांधी right. So you have named all so it's your favorite female singers, you know. I relate so much to you. Okay, by the way, I just got this one thing कि this guy Rahi is a soulful person और he will like everything that has soul in it. अगर soul yeah नहीं है, राही की लिस्ट में नहीं आ सकते हो, राही के आसपास आप नहीं रह सकते हो. You have to have some yeah soul in it. Oh बिल्कुल wow, that's बिल्कुल wonderful.
ओके ओके, तो आज के टाइम का ऐसा कौन सा गाना है जो आपकी प्लेलिस्ट में इस टाइम है, अपने गाने के अलावा? सच बोलो या झूठ? सच। तो सच ये है कि मेरे प्लेलिस्ट में एक भी गाना नहीं है। I was expecting this, but still कोई गाना जो आज के टाइम पे जो आपको काफी पसंद आ रहा हो इन दिनों, कोई आपने सुना हो? मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं अब आप अगर मेरा फोन भी चेक करोगे, अगर मेरा लैपटॉप भी चेक करोगे, अगर मेरी गाड़ी में गाने भी चेक करोगे, मैं कुछ भी नहीं सुनता हूँ। अच्छा, तो मैं फिर आपको ये ना ये हाँ, बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी सी बात हो गई। क्या होता है कि अभी मैं जितने भी म्यूजिशियन से मिलती हूँ ना, सब कहते हैं कि आप जो भी बनाना चाहते हो वैसे गाने सुनो, मतलब यू शुड बी लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, एंड ट्रस्ट मी, आई ऑल्सो राइट माई ओन सॉन्ग्स, मेक माई ओन सॉन्ग, बट आई नेवर लिसन टू एनीबडी, एंड यू आर द फर्स्ट हाँ। आर्टिस्ट आई एम मीटिंग जो मेरी तरह ही कह रहे हैं कि मैं भी गाने नहीं सुनता हूँ। नहीं, बेसिकली सी इट इज गुड फॉर सम पीपल, इट वर्क्स फॉर सम पीपल जिनको थोड़ा सा उस तरह का म्यूजिक चाहिए, सो दैट एक लर्निंग हो जाती है उसमें, वो गलत नहीं है। बट देन आई हैव अ बट डाउट। या आप प्लीज बोलिए, प्लीज कंप्लीट कीजिए, देन आई हैव अ डाउट। yeah but I feel that what the kind of music I create, I need that soul, as you said कि जैसा मैं हूँ, मैं फेक नहीं बन सकता हूँ। अगर मैं फेक बन गया तो मेरा म्यूजिक कभी आपको छुएगा भी नहीं। आप बोलोगे कितना गंदा सॉन्ग बना दिया राही ने, वो कभी भी दिल से नहीं होगा। उसमें कुछ तो होगा वैसे यार, मैं अभी ये एलिमेंट डाल दूं, अच्छा वो अच्छा लग रहा है वो एलिमेंट डाल दूं, उस सॉन्ग में तो वो अच्छा लग रहा था वो एलिमेंट डाल दूं, ऐसा ऐसा होगा फिर। या अच्छा, एक छोटा सा डाउट यहाँ पे सभी म्यूजिशियंस की तरफ से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि देखिए या अभी तो आप मतलब आप कंपोज कर रहे हैं तो आप कोई नए गाने नहीं सुनते हैं, आपके मोबाइल में कोई प्लेलिस्ट आपकी नहीं है, लेकिन जब आप बिल्कुल छोटे रहे होंगे, टीनेजर रहे होंगे, तो आपने पुराने गाने जरूर सुने होंगे जो उस टाइम पे रेडियो पे बजते होंगे, तो बिल्कुल बिल्कुल ये ये होंगे इसमें कहीं ना कहीं आपकी चॉइस बिल्कुल नहीं भी रही होगी तो भी। बिल्कुल सी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं ना बचपन से ही मुझे मेरे मेरे जो वालिद है, मेरे जो डैड है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा संगीत सुनाया बचपन से ही। मतलब मेहंदी हसन खान साहब, यू नो उस्ताद राशिद खान साहब, मतलब मुझे क्लासिकल पसंद नहीं था, लेकिन मैं ना फिर भी मुझे कुछ कंपोजिशंस ऐसी लगती थी जो मुझे लगता था यार क्या रूद आ रही है, यू नो। सो वो चीजें आपको याद होगा, एक मोरा सही आया था, यस मोरा सही मुझसे यस। बोले ना। मैं डैड का वेट करता था हमेशा, वो ऑफिस से कब आएंगे, क्योंकि मेरे पास फोन नहीं होता था, एंड उनके उनके मोबाइल में वो सॉन्ग होता था। मैं वो सॉन्ग सुन के मैं बोलता था चलो आज का दिन हो गया। सो वो एक मेरा फेवरेट सॉन्ग था उस टाइम का। आई रिमेम्बर मैं स्कूल में जब जाता था तो एक कॉल बैंड करके था, उसमें एक सब बुला के एक सॉन्ग था, मैं पूरे रास्ते वो गाना सुन के जाता था ऐसे। सो छोटे में तो बहुत मेमोरीज होती है। लकी अली के सॉन्ग थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्लस इसमें नहीं मतलब आई वांट टू आस्क कि जैसे आपने वो तो गाने सुने, अब के जो गाने हैं वो थोड़े से अलग हैं, उनका प्रोग्रामिंग भी थोड़ी सी अलग है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि आप नए गाने नहीं सुन रहे हैं इस वजह से आप पे पुराने गानों का इन्फ्लुएंस आ रहा है या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सी दैट विल डिसाइड ऑडियंस, आई कांट डिसाइड दैट, उनको जैसा भी लग राइट। रहा है। लेकिन हाँ। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मुझे व्हेनेवर आई कंपोज एनीथिंग, मुझे कुछ भी अगर मैं कंपोज करता हूँ तो मुझे ऑलरेडी पता होता है कि मुझे इसका प्रोग्रामिंग कैसे करना है, बिकॉज जिस तरह से मैंने सोच रखी है मैं उसी बियॉन्ड से जाता हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि अच्छा ये अभी के टाइम पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, ऐसा हो रहा है या नहीं। मैं गाने को क्या चाहिए, गाना खुद ही बोल रहा है कि मुझे क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं चाहिए। सो मैं उसके हिसाब से काम करता हूँ। मैं इफ आई विल थिंक लाइक अभी क्या चल रहा है तो कभी आप मेरा म्यूजिक कभी ढूंढ नहीं पाओगे कि वेरी ट्रू। हु आई एम। या दैट्स अच्छा, द आई थिंग। call from Kashmir and Jammu and Srinagar because my show also goes on air there. और वाह क्या वाह होता है वाह, कि वहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू है, मतलब कि बहुत ज्यादा। वहाँ पे लोग वो चाहे तो भी चीजें नहीं कर पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल जैसे कई बार बात करते हैं बिल्कुल। तो मुझे पता है, लेकिन देन यू नो व्हाट, आई हैव थॉट अबाउट यू अ लॉट मेनी टाइम्स कि यार मतलब राही कैसे, मतलब क्या चैलेंजेस उनके रहे होंगे कि ही हैज रियली फॉट ऑल ऑफ इट एंड केम हियर। So kudos to you. I really want to congratulate you for Thank you, everything. thank you, thank you, thank you. I mean, if you know the my song Kashir, उसका प्रॉब्लम ये हुआ, कश्मीर ज्यादा लोगों तक पहुंचा नहीं बिकॉज 18 महीने कश्मीर बंद था, जबकि पूरा सॉन्ग कश्मीरी में है। सो
उसमें सिर्फ 2-3 लाइंस है जो मैंने उर्दू में डाली थी, बाकी तो सारे कश्मीर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते हैं, वो तो सिचुएशन वैसी है। लेकिन इंसान को ना ऐसे रोना नहीं चाहिए, अरे यार हो रहा है, Right. यू नो, जस्ट बी पॉजिटिव, यू नो, कुछ ना कुछ अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से रास्ता यू नो दिखा देते हैं। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन इट। बट या जो वहां रह रहे हैं, ऑनेस्टली माय मॉम, माय डैड, दे आर माय ब्रदर्स, दे आर फेसिंग एजुकेशन प्रॉब्लम हो रही है, मेडिकल प्रॉब्लम हो रही है, यू नो, इतने पेशेंट्स के रिकॉर्ड रहते थे कंप्यूटर में, वो नहीं चल रहे, उनको पता ही नहीं उनको दवाई कौन सी लगी। सो ऐसे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा। एंड But मीडिया then, प्रॉब्लम है, मीडिया इज नॉट कवरिंग दैट, दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। आई नो अगर इंडिया यू नो विल कम टू नो ना, इट विल बी बैंग, मतलब इफ दे विल कम टू नो कि अच्छा कश्मीर में ये सब हो रहा है, दे विल फील अरे यार ये क्यों हो रहा है, as you felt, you know, it's the same thing. Talking to the listeners, I felt यार ये तो मतलब they are deprived of a lot many things. तब मुझे यकीन हुआ कि यहाँ से किसी भी आर्टिस्ट का, बिकॉज कई बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट कश्मीर के होते हैं जो मुझे कॉल करते हैं, मैं उनको रीच आउट करती हूँ, तो लेकिन कभी नेटवर्क इशू आ जाता है, कभी क्या हो जाता है। So I feel really okay, but then I know you that you have will and you have found a way. So I know कि जिसके भी दिल में actually will है, जो जिसके अंदर pure soul है, will definitely find out a way. That was wonderful, बिल्कुल। Rahi, and I wish Thank you you so all the much. best. And Thank you so I much. had so much fun talking to you. It has always been wonderful. Same here, और same here, अच्छा same here, लगता है आपसे same बात here. करके, और such a spiritual person and such a pure soul. Thank you so much, Rahi, for your time. Thank you All so the much. best for Thank your you new so much. song. Thank you. Bye. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Bye bye.